Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we will discuss NTA NEET based test number 101 chemistry paper. Let's see how the test paper was by solving the questions. Coming to the first question, the energy of an electron in excited hydrogen atom is minus 3.4 electron volts. Then according to Bohr's theory, the angular momentum for this electron in joule second is. Okay, so if you remember the energy levels in hydrogen atom, then this becomes a slightly easier question. Otherwise you will have to go by the formula minus z square by n square times RH. Energy is given to be minus 3.4 electron volts. Z is 1, we have to find n. RH is Rydberg's energy, whose value is 13.6 electron volt. From here we will get the value of n as 2. That means the electron is present in the second quantum state. Then the formula of angular momentum according to Bohr's model is n times h upon 2 pi or nh bar. The value of n is 2. The value of h is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second upon 2 pi. Pi is 3.14 approximately. So this value will come out to be approximately 2.11 into 10 to the power minus 34 joule second. 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहा है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी वो होगी 2.11 इंटू 10 to the power minus 34 joule second, which we can observe in the first option. So this was a relatively simple question. First option is correct. Coming to the second question, the shape of XeF3 plus is. So we will have to draw the Lewis structure and judge its geometry. In XeF3 plus you will have 3 fluorine atoms attached to xenon. The positive charge is also on xenon. पॉजिटिव चार्ज ऑन xenon का मतलब ये है कि xenon के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जगह अब 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जिसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए हैं, बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स. This is what the Lewis structure of the species would be, and there are 3 bond pairs and 2 lone pairs around xenon. So this becomes a AB3L2 type of species. 3 bond pairs, 2 lone pairs, and such species have T-shaped geometry. As you can observe, the shape of XeF3 is T-shaped, XeF3 plus, although it would be slightly distorted because of the presence of lone pairs. It will not be a perfect T. So the correct option would be C, band T-shaped. Coming to the third question, flagpole interaction. I think this question is going a little bit out of syllabus. Cyclohexane के conformations NCERT textbook का हिस्सा तो नहीं है. साइक्लोहेक्सेन के 2 important conformations होते हैं, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म. चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म. बोट फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, उसमें ये जो ऑपोजिट पोजिशंस हैं, इन पर जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इन्हीं के बीच के इंटरेक्शन को बोलते हैं फ्लैगपोल interaction, right? So this flagpole interaction is present in the boat form of cyclohexane. If you don't know this fact, then you should better leave the question. Coming to the fourth question, mole ratio of iron in FeO, Fe2O3 and Fe3O4 samples of equal weights is. So the 3 samples are given to have the same mass. Suppose the mass of all 3 samples is W. All 3 samples have the mass W. Then to determine their moles, we have to divide by their molar masses. Taking the atomic weight of iron as 56 and oxygen as 16, the molar mass of FeO is 72 grams per mole. The molar mass of Fe2O3 comes out to be 160 grams per mole, and the molar mass of Fe3O4 is the sum of these 2 quantities, which will come out to be 232 grams per mole. These are the moles of the 3 compounds.
Now find the moles of iron atoms in the three substances. Moles of iron in FeO is W by 72. In Fe2O3 it would be twice W by 80. And in Fe3O4 it would be thrice the moles of Fe3O4, 3W by 232. Because in one ferrous oxide unit you have one iron atom, in one ferric oxide formula unit you have two iron atoms, and in Fe3O4 we have three iron atoms per formula unit. So these are the moles of iron in the three samples, and we have to find the ratio of these quantities. By taking the ratio, W will get cancelled out. You will get 1 by 72 is to 1 by 80 is to 3 by 232. Let's multiply the three numbers by 72. On multiplying by the same number, the ratio won't change, but things will get a little bit simplified. Let's try to cancel the things now. So the ratio comes out to be 1 is to 0.9 is to 54 by 58 or 27 by 29, which is approximately 0.93. So 1 is to 0.9 is to 0.93. ये मोल्स ऑफ आयरन का करेक्ट रेशियो है तीन सैम्पल्स में. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी. थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है. CS2 एंड SO3 रिएक्ट टू प्रोड्यूस. फिर से ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन से क्या बनता है? इससे बनता है कार्बोनिल सल्फाइड COS, साथ साथ SO2. तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना. इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनिल सल्फाइड. अगेन अगर ये रिएक्शन आपको पता नहीं है तो आप बेटर है कि क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि सही होने की संभावना कम है. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ए. कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट प्लेनर. नॉन प्लेनर कंपाउंड या आयन कौन सा है इनमें से? इसके लिए अगर अपन ध्यान से देखें तो जो बी, सी और डी ऑप्शन में गिवन स्पीशीज़ हैं वो सब के सब एरोमेटिक हैं. आप देखेंगे कि बी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड in the ring, and the same is true for the C part also. So these two species are aromatic. For them to be aromatic, the rings have to be planar. If the ring is not planar, the species is not going to be aromatic. And the fourth species is also aromatic. This ring now has 2 pi electrons, completely delocalized. Completely delocalized in the ring. ठीक है. So this is also aromatic. The only species which is not aromatic is given in first option. If this molecule is planar, it would become anti-aromatic. It would become anti-aromatic, and anti-aromaticity is destabilizing. In order to avoid being anti-aromatic, this molecule will become non-planar. Molecule will become non-planar to avoid being anti-aromatic. In that case, it will become non-aromatic. So the correct answer would be A. Coming to the seventh question. A perfect gas of a given mass is heated first in a small vessel and then in a large vessel, such that their volume remains unchanged. So the volume of vessels remains unchanged. But first of all, it was heated in a small sized vessel
and secondly in a large sized vessel. But the volume is unchanged. Mass is also fixed. In such a situation, pressure and temperature are directly proportional. And this proportionality comes from the ideal gas equation. If P is plotted on y-axis and T on x-axis, this is a straight line graph whose slope is nr by v. Right? The straight line will pass through origin. Slope depends on volume. हायर वॉल्यूम के लिए स्लोप स्मॉलर होगा, स्मॉलर वॉल्यूम के लिए स्लोप स्टीपर होगा. नेवरदलेस स्लोप जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है. तो जब पहले स्मॉलर वॉल्यूम था तो स्लोप स्टीपर होगा, बाद में लार्जर वॉल्यूम है तो स्लोप ग्रेजुअल हो जाएगा. नेवरदलेस प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ रहेगा तो स्ट्रेट लाइन, बट टू स्ट्रेट लाइन्स with different slopes. 7th का आंसर D. Right? Coming to the 8th question. This question is going a little bit out of syllabus. NaNH2 is a strong base. In the presence of such a strong base, first of all, there would be dehydrohalogenation, and we will get allene. But this allene will rearrange. Now this rearrangement reaction is not given in the NCERT textbooks. Allene being kind of unstable, less stable, rearranges to form, ध्यान रहे cumulated dienes less stable होते हैं. It will get converted into propyne. And in the presence of NaNH2 as a strong base, the terminal hydrogen of propyne will get abstracted, and we will get sodium propionide. Sodium propionide as the final product. Carefully options को देखें. सोडियम प्रोपाइनाइड आपको थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है. अगेन इसमें जो आइसोमेराइजेशन हो रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है. Average oxidation number of carbon in C3O2 and Mg3C2. C3O2 कार्बन सबऑक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है. अगर कार्बन का x माना जाए तो 3x + 2 टाइम्स -2, ये सम 0 होना चाहिए. तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4/3. सिमिलरली इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होना फिक्स्ड है. कार्बन का y मान लेते हैं. 2 टाइम्स +2 + 3 टाइम्स y इज़ 0. यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -4/3. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स बता रहे हैं कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है. 4/3 एंड -4/3. केयरफुली देखें, ये सेकंड ऑप्शन में आपको दिखाई देगा. 9th का आंसर B. कमिंग टू द 10th क्वेश्चन. द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. Enthalpy change occurs at the same temperature, then the reaction is feasible. Feasibility के लिए हम delta G को नेगेटिव करेंगे. Delta G is delta H minus T delta S. This term is positive as the reaction is endothermic. Delta S term is also positive given in the question. For the reaction to be spontaneous, delta G must be negative. Right? That means delta H minus T delta S must be negative, or you can say that delta H must be less than T delta S. In such a situation, the reaction would become feasible or spontaneous. Coming to the 11th question. N2 plus H2 gives X. X when reacted with CO2. So first of all, N2 और H2 की रिएक्शन से तो बनेगा NH3. NH3X है. NH3 की रिएक्शन करा रहे हैं CO2 से प्रेशर पर, हाई प्रेशर कंडीशंस पर. ऐसा करने पर सोडियम कार्बामेट बनेगा. NH2COO NH4. This is called as ammonium carbamate.
सोडियम कार्बामेट नहीं, अमोनियम कार्बामेट बनेगा, ये है Y। और अमोनियम कार्बामेट को हीट करने से वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, NH2 डबल बॉन्ड हो, NH2 बनेगा, इसी कंपाउंड को अपन बोलते हैं यूरिया। ठीक है ना, अमोनियम कार्बामेट एंड यूरिया आर द प्रोडक्ट्स Y एंड Z। ऑप्शंस केयरफुली देखें, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, एल्कोहलिक KOH के साथ एल्काइल हैलाइड को हीट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर E2 रिएक्शन होगी और एल्कीन ऐसा बनना चाहिए जो ज़्यादा स्टेबल हो। यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड्स को कॉन्जुगेशन में रखने का मौका मिल रहा है और हमें वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एक कॉन्जुगेटेड डाईईन। Conjugated diene is more stable than an isolated diene or accumulated diene because of resonance। तो यहाँ पर आप देखिए conjugated diene आपको थर्ड ऑप्शन में दिखाई देगा। 12th का आंसर C। Coming to 13th question, again very much a fact based question। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस काफ़ी पूछी जा रही हैं इस टेस्ट पेपर में। BeO प्लस कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस X, and X when reacts with water gives BeOH whole twice plus Y। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में X को लेकर तो एक ही कंपाउंड चारों ऑप्शंस में लिखा हुआ है विच इज़ BE2C। तो X में तो कोई शक नहीं रह गया। X तो BE2C है, उसकी वाटर से रिएक्शन कराने पर BeOH होल ट्वाइस बन रहा है और साथ साथ बनेगा CH4 मीथेन गैस। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से रिएक्शन अगर आपको पता नहीं है तो प्रोडक्ट लिखना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। कार्बन यहाँ -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट साइड में भी -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी एटम का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा, कार्बन -4 स्टेट में ही होना चाहिए। और अगर आप बाकी 3 ऑप्शंस देखें तो उनमें कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नज़र नहीं आएगा। -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन CH4 में ही है। कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ PCl5। एक ग्राम मॉलिक्यूल थोड़ा पुरानी टर्मिनोलॉजी है। ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखे होने का मतलब है मोल्स। ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम्स। ग्राम मॉलिक्यूल कंटिन्यूएशन में लिखने का मतलब होता है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 लीटर कैपेसिटी के वैसल में PCl5 को हीट किया गया। ऐसा करने पर उसका डिकम्पोजिशन हुआ PCl3 और Cl2 में 40% डिकम्पोजिशन हुआ। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? इट इज़ वेरी क्लियर कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 1 मोलर है, 2 मोल्स इन 2 लीटर्स। द रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिकम्पोजिशन इज PCl5 breaking down into PCl3 and Cl2। Initial situation is this, 40% डिकम्पोजिशन होने का मतलब PCl5 में 0.4 मोलर का डिक्रीमेंट आएगा। PCl3 और Cl2 दोनों ही 0.4 मोलर से इंक्रीज होंगे। तो ये हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। यहाँ से फिर हम Kc इवैल्यूएट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये 0.8/3 आता है विच इज़ रफली 0.267। 0.267 is the value of Kc which you can observe in the second option. Coming to 15th question, we have to match the quantity with the correct formula, right? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। डेल्टा जी इज रिलेटेड टू Q एंड डेल्टा जी नॉट इज रिलेटेड टू K।
Delta G is related to E cell and delta G naught is related to E naught cell. Delta G is minus NFE. इसका मतलब P must be matched with Q. Delta H is delta U plus P delta V at constant pressure. That means Q must be matched with 1. Delta S naught can be written as NR ln V final upon V initial. For isothermal expansion or contraction of an ideal gas, this formula which we have written will apply only for an ideal gas. Nevertheless, we have to match R with 4 and delta G naught is related to K minus RT ln K. So S must be matched with 3. ठीक है, P with 2, Q with 1, R with 4 and S with 3. ये चीज़ अपन को फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रही है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. 15th का आंसर A. Coming to the 16th question. We are given an allylic alcohol which on reaction with HBr gets converted into some 2 degree allylic bromide. तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन एक डिफरेंट पोजीशन पर जाकर लगा है. ऐसा तभी हो सकता है जब रिएक्शन में कार्बोकेटायन इन्वॉल्व रहा हो और कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ हो. So how this reaction could have proceeded possibly? First of all, there would have been protonation of the terminal alcohol. After protonation, water would have been lost and we get a 1 degree allylic carbocation whose resonance structure is a 2 degree allylic carbocation. And 2 degree allylic carbocation is relatively more stable than a 1 degree allylic carbocation. And hence the SN1 reaction or the attack of nucleophile would occur more at this 2 degree allylic position. CH3, CH, Br, CH double bond, CH2. Here this carbon will become chiral and the product would be a racemic mixture. Nevertheless, reaction follows SN1 mechanism. It is surely not elimination, it is definitely substitution and it is involving rearrangement, hence it is SN1 reaction. Coming to 17th question. Again, you should be knowing the name of the ligand, otherwise you cannot mark the answer correctly. Obviously, this is a bidentate ligand. Nitrogen has a lone pair on it. There are 2 nitrogens, hence it is a bidentate ligand. And the name of this ligand is 1,10-phenanthrolin. ये fact based question है, पता ना हो तो छोड़ना ही पड़ जाएगा. Compound A on oxidation with hot KMnO4 in basic medium gives 2 compounds. Compound A will have the structure. तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके हमें ओरिजिनल पेरेंट कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है. अगर आप ऑप्शंस देखें तो 2 ऑप्शंस में एल्कीन्स हैं और 2 ऑप्शंस में एल्काइंस हैं. पेरेंट कंपाउंड एल्काइन तो डेफिनेटली नहीं रहा होगा क्योंकि एल्काइन के क्लीवेज से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता. ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को कंबाइन कर दें और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके जाएं. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इस वाले पार्ट्स से समझ में आता है कि डबल बॉन्ड कुछ इस तरह की पोजीशन पर रहा होगा और इस वाले कंपाउंड से समझ में आता है कि डबल बॉन्ड कि एक तरफ डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन पर हाइड्रोजन है और एक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. This is how the structure of the molecule would have been. And this is something we can observe in the second option. 18th का answer B. 19th question. In an irreversible process,
Irreversible means spontaneous, occurring at constant temperature and pressure, in which only pressure volume work is being done. Change in Gibbs free energy and change in entropy satisfy the criteria. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो सब्सक्रिप्ट्स लिखे हुए हैं इनको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. DG के नीचे जो T और P लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हैं. डेल्टा S के नीचे V और U का लिखना ही बता रहा है कि वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है. U इज द सिंबल ऑफ internal energy. For a process occurring at constant temperature and pressure to be spontaneous, delta G or dG must be negative. Delta G is used to predict the spontaneity of a process which is occurring at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, delta G must be negative for a spontaneous process. And delta G can be written as delta H minus T delta S. And delta H can be further written as du plus P dV minus T ds. Now in the other part about ds, the question is saying that volume and U are constant. If volume is constant, P dV is 0. And if U is constant, du is 0. So both these terms are 0, corresponding to a constant volume and internal energy. And if these two terms are 0, it means minus T ds must be negative. And for it to be negative, ds must be positive. But this ds has been found under the conditions of constant volume and internal energy. So ds must be positive and dg must be negative. Fourth option is correct. Coming to 20th question. Each of the three metals X, Y and Z were put in turn into aqueous solutions of the other two. X plus salt of Y or Z gives Y or Z plus salt of X. It means that X is able to displace the ions of Y or Z from the solution. X itself goes into the solution, which means X is a more active metal than Y or Z. It is for sure. X is a more active metal देन Y और Z. इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू लेकर चलना चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर एक्टिव देन सिल्वर. सो जिंक इज इन द रोल ऑफ X. Zinc can displace both copper ions and silver ions from the solution. A more active metal can displace the ions of a less active metal from the solution. So this is what is happening. Which of the following observations is probably incorrect? Incorrect observation के बारे में मार्क करना है. Y plus salt of X, no action observed. X is able to displace the salt of Y, but Y won't be able to displace X. Y displacing X means a non-spontaneous reaction, right? So this is a correct statement. Y plus salt of Z gives Z plus salt of Y. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि Y और Z क्या है ये हमें नहीं बताया, और Y और Z में कौन ज़्यादा एक्टिव है ये भी नहीं बताया. If Y is more active than Z, then it would be able to displace Z, otherwise not. So this option may or may not hold true. We are not quite sure. Z plus salt of X gives X plus salt of Z. This is definitely incorrect, because Z is a less active metal than X. X is the most active metal, so it cannot be displaced by a less active metal. For example, if you try this reaction, Ag plus zinc nitrate, if you want
silver ions to go into the solution and zinc ions to come out of the solution. This will not happen. No such reaction will occur. Right? So Z cannot displace X from the solution. This is definitely incorrect and this has to be marked as the answer. ठीक है, डी वाला ऑप्शन भी मे और मे नॉट बी करेक्ट ऐसा हो सकता है. Coming to 21st question. SCl2 is the best known dihalide of sulfur. The hybrid state of sulfur in SCl2 is. For this we have to draw the Lewis structure. We will see that sulfur will have 2 lone pairs and 2 bond pairs on it. 2 bonds बनाने के बाद भी सल्फर के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो लोन पेयर के फॉर्म में दिखाई देंगे. So there are 4 electron clouds around sulfur atom, and in that case sulfur atom must be sp3 hybrid. Second option is correct. Coming to 22nd question, which of the following is correct for the velocity of electron? Now this is very much an incomplete question. आप किस कॉन्टेक्स्ट में वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो आपने बताया ही नहीं किस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी. तो ये क्वेश्चन बेसिकली बोर्स मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड का फॉर्मूला है Z/n times 2.19 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो V जो है वो 1/n के प्रोपोर्शनल है, ये कहें कि n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, बट वो लीनियरली कम नहीं होगी जैसा कि ये ऑप्शन में दिखाया है. V जो है वो Z के प्रोपोर्शनल है, 1/z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेकेंड वाला ग्राफ भी सही नहीं है. अगर हम थर्ड वाला ग्राफ देखें तो इसमें वो इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी दिखाई दे रही है. हायर द वैल्यू ऑफ n, स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ स्पीड. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n, हायर इज द वैल्यू ऑफ स्पीड. थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है. A, B एंड D आंसर मार्क नहीं करने हैं. कमिंग टू 23rd क्वेश्चन. Which oxide of carbon is obtained when potassium hexacyanoferrate is warmed with sulfuric acid? अगेन रिएक्शन याद होगी तभी कर पाएंगे. इस तरह के कई क्वेश्चंस आए हैं इस टेस्ट पेपर में, जिस वजह से ये टेस्ट पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है. सारे फैक्ट्स याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है. तो हेक्सासाइनोफेरेट आयन की रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रही है एक्वस मीडियम में. ऐसा करने पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं होता, लेकिन साइनाइड आयन अल्टीमेटली अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ साथ रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. 23rd का आंसर A. कमिंग टू 24th क्वेश्चन. स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन है एक इलेक्ट्रोलाइट का 25 डिग्री सेल्सियस पर. स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये है, मतलब कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है. वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी. Conductivity is given to be 4.5 into 10 to the power minus 4 Siemens centimeter inverse, and normality is 0.5 equivalents per liter, and liter को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूँ. ऐसा करने पर फाइनली मुझे ये वैल्यू मिलती है 0.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब 0.9 अपॉन 300. ऊपर नीचे यूनिट सेम रखी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. अल्फा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. दिस विल बिकम
3/1000, which is 0.003. So 0.3% डिसोसिएशन हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर. अल्फा की वैल्यू है 0.003. कमिंग टू 25th क्वेश्चन. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस डाई कीटोन पर अटैक करेगा. आफ्टर द अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह का स्पीशीज बनेगा. 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा. उसके बाद हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. ऐसा करने से विसिनल डायोल या ग्लाइकॉल मिल जाएगा. वैसे तो एसिडिक मीडियम में विसिनल डायोल्स रीअरेंज करते हैं, जिसको अपन पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कुछ और बनना चाहिए था. लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें तो पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. उस सिचुएशन में ये डायोल को ही हमें मार्क करना पड़ेगा. हालांकि इस विसिनल डायोल में पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट होना था और बाद में एक कीटोन बनना था. इस तरह से पर ये ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए अपन इस तरफ जाएंगे नहीं. फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे. कमिंग टू द 26th क्वेश्चन. हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है. हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एक डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है और CONH2 ग्रुप में से NH3 मॉलिक्यूल कार्बन एटम का लॉस होता है और हमें फाइनली अमीन मिलता है. अभी हमें जो अमीन मिलेगा वो ऐसे कार्बन पर मिलेगा जिस पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये बात हमें 4th ऑप्शन में नज़र आ रही है. कमिंग टू 27th क्वेश्चन. एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 2 साइक्लिक प्रोसेसेस दिखाई हुई हैं और इन सर्कल्स के एरियाज हमें दे रखे हैं 25 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. वर्क डन कितना होगा, इसका मतलब दोनों साइक्लिक प्रोसेसेस में मिलाकर टोटल वर्क डन कितना हुआ है. इसमें आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज होती है इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में सिस्टम पर वर्क होता है और क्लॉकवाइज प्रोसेस में सिस्टम के द्वारा वर्क होता है. क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, work done on the system is negative. टोटल वर्क डन अपन से पूछा है और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम अपन को फाइंड करना है. तो ए वाली प्रोसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम 25 यूनिट्स है और बी वाली साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम -20 यूनिट्स है नेगेटिव साइन के साथ. टोटल वर्क डन है 5 यूनिट्स. प्रोसेस ए में 25 यूनिट्स वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम. प्रोसेस बी में -20 यूनिट्स ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम. टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 5 यूनिट्स. राइट, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री वर्क डन ऑन द सिस्टम is taken to be positive. 28th question. Iodine crystals are added to liquor ammonia and the brown precipitate so obtained is separated, dried and spread on floor. On walking over the precipitate, harmless explosion occurs releasing colored gas. The precipitate and the colored gas are respectively. फिर से अगर ये रिएक्शंस अपन को पता ना हो तो ये क्वेश्चन छोड़ देना ही बेटर है. अमोनिया के ऊपर
आयोडीन क्रिस्टल्स स्प्रे करने से आयोडीन और अमोनिया की रिएक्शन होती है, उससे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनता है NH3NI3। इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है क्योंकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसमें NH3 मॉलिक्यूल्स भी और NI3 मॉलिक्यूल्स भी हैं, दोनों से मिलकर ये प्रेसिपिटेट बना है। अब इस क्रिस्टल के ऊपर अगर हम चलें, मतलब इस पर प्रेशर अप्लाई करें, तो ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई करने से डिकम्पोज हो जाएगा और इससे बनती है अमोनियम आयोडाइड, आयोडीन गैस के फॉर्म में, और नाइट्रोजन। तो जिस कलर्ड गैस का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो है आयोडीन। ठीक है, तो NH3NI3 एंड आयोडीन, these are the two required products। 28th का आंसर C। Coming to 29th question, for the given reaction the statement which is not correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखिए, जिस रेशियो में सब्सटेंसेस कंज्यूम और फॉर्म होते हैं वो उनका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ही होता है। मतलब A के कंज्यूम होने का रेट, B के कंज्यूम होने का रेट, C के फॉर्म होने का रेट और D के फॉर्म होने का रेट, इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड कंजम्पशन इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो में ही है। और कोफिशिएंट्स हैं 4, 1 एंड 2, 2। 4:1:2:2। अब ऑप्शंस पढ़ें। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज़ 1/4 द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A। ये बात तो सही है। DA/dt इज टू DB/dt देखा जाए तो 4:1 है। इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज 1/4 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। 4 मोल A कंज्यूम होता है तो 1 मोल B कंज्यूम होता है, तो B के कंज्यूम होने का रेट A के कंज्यूम होने के रेट का 1/4 है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि C का कोफिशिएंट 2 है, C के बनने का रेट डबल है। B के कंज्यूम होने के रेट से C के बनने का रेट डबल है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इज हाफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। D का कोफिशिएंट 2 है, A का कोफिशिएंट 4 है। 4 मोल A कंज्यूम होने पर 2 मोल D बनता है। मतलब जितना A कंज्यूम होता है उसके मुकाबले हाफ D बनता है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D हाफ है। ये बात तो सही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C एंड D आर इक्वल, ये बात भी सही है क्योंकि C और D के कोफिशिएंट्स सेम है। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है B। 29th का आंसर B। कमिंग टू 30th क्वेश्चन। सॉल्ट्स हैं M2X, QY2, PZ3, उनकी सेम सॉल्युबिलिटीज़ हैं, 0.1 मोलर से कम है। उनकी KSP वैल्यूज़ का रिलेशन क्या होगा? मान लेते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी X है, X मोलर। एक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन के लिए इसको अपन 0.1 मोलर भी मान सकते हैं। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी X है तो M2X का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4x³ आएगा, QY2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी 4x³ आएगा, PZ3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 27x⁴ आएगा। ये चीज़ें अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे M2X के लिए अपन रिएक्शन लिखी 2m प्लस x-, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी x है तो x2 - x बनेगा और जो m+ है वो 2x बनेगा। और यहाँ से KSP का एक्सप्रेशन बनेगा 2x² × x विच इज़ 4x³। ऐसा ही आप बाकी केसेस में भी करके देख सकते हैं। ये KSP वैल्यूज़ आएंगी। इनमें अगर अपन देखें तो ये दोनों KSP वैल्यूज़ तो इक्वल हैं। अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर x की वैल्यू 0.1 मोलर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो इन दोनों का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो 4 × 10⁻³ आ जाएगा, राइट। और PZ3 का KSP आएगा 27 × 0.1 to the power 4 which is 2.7 × 10⁻³
तो इस लिमिटिंग केस में भी PZ3 का KSP स्मॉलर आया है, तो बाकी सिचुएशंस में भी इसका KSP स्मॉलर ही रहेगा, ऐसा अपन मान सकते हैं। PZ3 का KSP स्मॉलर है, M2X और QY2 का KSP इक्वल है। ये बात अपन को फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आएगी। 30th का आंसर A। कमिंग टू 31st क्वेश्चन, विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज ऑब्टेन्ड व्हेन मैलोनिक एसिड इज हीटेड विद P2O5 एट 575 केल्विन। मैलोनिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो मैलोनिक एसिड को हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो हम रिएक्शन करा रहे हैं वो कुछ अलग है। यहाँ पर अपन P2O5 यूज़ कर रहे हैं, P2O5 या P4O10। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर रिमूव कराता है। आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और 4 हाइड्रोजन एटम्स से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना तय है। P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और अगर अपन इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम 4 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कर रहे हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स रिमूव कर रहे हैं। उसके अलावा क्या बच जाएगा? उसके बाद अलावा 3 कार्बन एटम्स बचेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम्स बचेंगे। तो यही फॉर्मूला बचेगा, यही ऑक्साइड बनना चाहिए कार्बन का। इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। अगर सिंपल हीटिंग लिखी होती तब तो CO2 एंड CH3COOH बनते, लेकिन P2O5 के साथ हीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वाटर का लॉस होगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और उसके बाद बचेगा C3O2, फोर्थ ऑप्शन। कमिंग टू 32nd क्वेश्चन, शुगर प्रेजेंट इन DNA इज, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। DNA में डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोज शुगर प्रेजेंट है। 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है DNA में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CH2OH H, HOH H H OH H। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, और इस तरह की रिंग्स को अपन फ्यूरेनस फॉर्म कहते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग अगर बने शुगर की, और 5 मेंबर्ड रिंग में 4 कार्बन एटम्स हों और 1 ऑक्सीजन एटम हो, तो इसको फ्यूरेनोस फॉर्म कहा जाता है। 32nd का आंसर A। 33rd क्वेश्चन, एंजाइम कैटालिसिस के लिए कौन सा ग्राफ सही है? ये रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। एंजाइम तो कैटलिस्ट होता है, तो उसके यूज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाना चाहिए, पर होता ये है कि टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स अकर्स एट हायर टेम्परेचर्स, और जब डीनेचुरेशन होता है तो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम स्टॉप हो जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होने के बाद कैटालिटिक नेचर ऑफ एंजाइम नहीं रहता, और अगर एंजाइम कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना बंद कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में एक सडन फॉल आएगा। ये बात हमें 3rd ऑप्शन में नज़र आ रही है। इस टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हो रहा है, और डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन सडनली ड्रॉप करेगा। 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 34th क्वेश्चन, solute A undergoes association in a medium as Na gives and is given by An, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है। वैन हॉफ फैक्टर का एक्सप्रेशन बताना है। Na gives and is given by An,
ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप मान लीजिए कि आपके पास शुरू में 1 मोल ए है, 1 मोल में जो चेंज आता है उसको अपन अल्फ़ा कह सकते हैं। अल्फ़ा मोल्स ऑफ ए अगर कंज्यूम हुए तो अल्फ़ा बाय एन मोल्स ऑफ द एसोसिएटेड स्पीशीज़ हमें मिलेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम आने पर ए के मोल्स रह जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा और ए एन के बन जाएंगे अल्फ़ा बाय एन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। वैन हॉफ फैक्टर होता है moles of solute in solution divided by moles of solute added, and we have added 1 moles. यहाँ से वैन हॉफ फैक्टर का एक्सप्रेशन आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन, which we can clearly see in the third option. Coming to 35th question, how many unit cells are present in a cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 grams? Ideal crystal का मतलब उसमें कोई crystal defects, कोई deficiencies present नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें क्लोराइड एंड FCC लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करते हैं और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके चलते हमारे पास 4 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl पर यूनिट सेल। ये काफ़ी काम का फैक्ट है। अगर हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl फाइंड कर लें तो हम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अपन नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसका मास है 1 ग्राम, मोलर मास से डिवाइड किया 58.5 ग्राम्स पर मोल से, तो मोल्स ऑफ NaCl मिल गए। इसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मिल गई। और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का 1/4 लेने पर, क्योंकि 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल में, तो जितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगे उसका 1/4 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होगा। इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ये बनता है 602/234 इंटू 10⁻21। This quantity is somewhere around 2.57 into 10⁻21 is the number of unit cells. Answer is A. Coming to 36th question. 36th question में पहले SOCl2 से रिएक्शन हुई। SOCl2 से रिएक्शन होने पर कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद NH2OH से रिएक्शन होने पर NH2OH क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हुए। फिर बेसिक मीडियम में क्या होगा? इसके एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होते जाएंगे। OH माइनस इस NH ग्रुप का भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। C6H5 C डबल बॉन्ड O N माइनस OH। इस इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन के पास पास होने से ये स्पीशीज़ अनस्टेबल हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयंस का लॉस होगा। ऐसा करने से हमें फिर नाइट्रीन मिलेगा जिसमें रीअरेंजमेंट होगा। PH N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रीन का जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा फाइनली PHNH2 प्लस कार्बोनेट आयंस। PHNH2 वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के स्टेप्स ही फॉलो करने वाली है रिएक्शन। कमिंग टू द 37th क्वेश्चन, which of the following complex has the same oxidation state of the central atom in the cationic and anionic part? ठीक है, तो यहाँ पर अपन को थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे अगर हम A में माने कि दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट्स का चार्ज सेम है और हम +2 चार्ज लेकर ट्राई करें, पिरिडीन तो न्यूट्रल होता है, अगर हम +2 चार्ज लेकर ट्राई करें तो कैटायन पर ओवरऑल चार्ज +2 आ रहा है और एनायन पर ओवरऑल चार्ज -2 आ रहा है, बिकॉज क्लोराइड आयंस हैव अ चार्ज ऑफ -1 ईच। और ये +2 -2
बैलेंस हो जा रहा है, इसका मतलब ओवरऑल चार्ज ज़ीरो हो गया, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, if we see in the second option, if we take platinum as +2 in both cases, charges will not balance. Even if we take them to be +4 in both cases, charges will still not balance. And this same thing would happen in the case of C also. So charge balance will occur in the first case only. And in the first case, platinum has an oxidation state of +2 in both cation and anion. Right? A option is correct. Coming to 38th question, which of the following statements is true? Piezoelectricity is due to net dipole moment. Piezoelectricity means electricity becoming good conductor of electricity under high pressures. तो ये statement factually correct है. Ferroelectricity is due to the alignment of dipoles in the same direction. Pyroelectricity is due to heating polar crystals. All these statements are factually correct, and the answer is D. Coming to 39th question, the equilibrium constant for the disproportionation of HgCl2 into HgCl plus and HgCl3 minus using these two reactions. So first of all, we have to write the concerned reaction. HgCl2, you have to take two formula units, it gets disproportionated to form HgCl plus and HgCl3 minus. So this is the reaction of interest. Mark these reactions as second and third respectively and try to bring HgCl2 on the left. थर्ड वाले रिएक्शन में HgCl2 लेफ्ट में दिख ही रहा है, सेकेंड वाले रिएक्शन में भी HgCl2 को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, इसका मतलब उसको रिवर्स करना पड़ेगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग रिएक्शन 2, मीन्स मल्टीप्लाइंग इट बाय -1 and then adding it with reaction number 3. And we know that on adding reactions their equilibrium constants get multiplied. On reversing the reaction the equilibrium constant gets reciprocal. So first of all K1 will become reciprocal and then the resulting equilibrium constant will get multiplied with K2. Finally this value will come out to be 3 into 10 to the power -6. This is the equilibrium constant corresponding to the disproportionation of HgCl2. Fourth option is correct. Coming to 40th question. One gas bleaches the color of flowers by reduction while the other by oxidation. The two gases respectively are. Again fact based question है. जो रिडक्शन करेगी वो खुद ऑक्सीडाइज होगी और दूसरों का जो ऑक्सीडेशन करेगी वो खुद रिड्यूस होगी. तो यहाँ पर जो गैस रिड्यूस होती है वो है Cl2 और जो खुद ऑक्सीडाइज होती है वो है SO2. तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. SO2 खुद ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 में कन्वर्ट होता है और क्लोरीन खुद रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा and it will act as an oxidizing agent by accepting electrons itself. Right? 40th का answer D. Coming to 41st question. Which one of the following is a heterogeneous polysaccharide? So again this is one of the many fact-based questions that we have seen in this test paper. Heterogeneous polysaccharide का मतलब एक ऐसा polysaccharide जो multiple type of monosaccharide से बना हुआ, same type of monosaccharide से नहीं, different type of मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो. और ऐसा पॉलीसैकेराइड है गम अरेबिक, हीट्रोजीनियस पॉलीसैकेराइड. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स हैं वो हैं अरेबिनोज, गैलेक्टोज, रैमनोज एंड ग्लूकोनिक एसिड. ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स. 42nd क्वेश्चन. इसमें तो स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? +I group, a group which is
having plus inductive effect stabilizes a carbocation. So this statement is definitely correct. Any group which is electron releasing will stabilize a carbocation, right? CH3 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 plus, इसमें जो CH3 ग्रुप्स हैं इनका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है, जिसके चलते ये कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करता है, क्योंकि कार्बन आयन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी नहीं है, घटानी है. और ये ए और सी फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो ए भी सही है और सी भी सही है, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं. In that sense, two options are correct. Right, coming to the next question, 43rd question. ओजोन एनालिसिस कराई गई है कंपाउंड ए की. उसके बाद हमें 3 कीटो ग्रुप्स ऑब्टेन हुए हैं और 3 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स भी ऑब्टेन हुए हैं. इट शोज दैट द ओरिजिनल कंपाउंड मस्ट बी हैविंग 3 कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स. must be having 3 कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स, तभी तो 3 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे. एंड ऑब्वियसली डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर होना चाहिए. ये सारी बातें अगर हम ऑब्जर्व करने जाएं तो ये सारी बातें हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई देती हैं. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. कमिंग टू 44th क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X of the formula C7H8O is soluble in NaOH but not in NaHCO3. This indicates that the compound must be having an OH group, phenol group. It gives color with alcoholic FeCl3. So this is a test for phenols. Positive test for phenols is being given by the compound. On reaction with bromine, it gives tribromo product. Tribromo product का मतलब है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर नॉट ब्लॉक्ड. इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट बचता है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट जो बचता है वो मेटा पोजिशन पर होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर होता तो फिर ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट नहीं बन पाता. इस कंपाउंड को क्रेसॉल बोलते हैं कॉमन नेमिंग में. ये मेटा क्रेसॉल है, विच वी कैन सी इन सेकेंड ऑप्शन. केयरफुली ऑप्शन मार्क करें, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. 44th का आंसर बी. कमिंग टू 45th क्वेश्चन. Which mixture is lighter than humid air? Humid air क्या होगा? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O. एंड जो डेंसिटी है वो मीन मोलर मास के प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है ना. मोलर मास अगर ज़्यादा है तो फिर गैस की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. तो H2O से ज़्यादा मोलर मास वाले गैसेस SO2 हैं, CO2 है, नियॉन है, इन सबका मोलर मास H2O से ज़्यादा है. लेकिन हीलियम का मोलर मास कम है, लेसर मोलर मास देन H2O. So this mixture would be a lighter gas than humid air. यहाँ पर डेंसिटी कंपेयर करनी थी मोलर मास के बेसिस पर. So this was the last question. That's it about today's test paper. Overall इसमें number of fact based questions ज़्यादा हैं. More number of fact based questions. There's more emphasis on memorizing facts, which is not a good thing according to me. And it is not easy to score in this test paper. Not easy to score big, because a couple of questions were going out of syllabus also. According to me, if you are scoring 145 plus in this test paper, it is a pretty good score. And score in deficit of 120 would be considered unsatisfactory. But this is not a standard NEET paper. Such division of
टॉपिक्स इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इन द एक्चुअल नीट एग्ज़ाम. इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा हैवी था, अनजस्टिफाइड था. चलिए आज के लिए इतना ही. किसी और टेस्ट पेपर के डिस्कशन में फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.